Good morning, students. Welcome to your new class. This time we have macroeconomics in syllabus. Last year you did microeconomics. Microeconomics is व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और ये है समष्टि. वो व्यष्टि था तो उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी किया था. तो यहाँ पे the system as a whole is studied. The first lesson is related to the difference in microeconomics and macroeconomics, but I am intentionally skipping that lesson because when we do the differentiation at this stage, there are many concepts which you are not really clear about in macroeconomics. After we have completed our macroeconomics, and then we take up this question of differentiation in microeconomics and macroeconomics, plus their dependence, plus some paradoxes are there, then you will better understand it. So a teacher makes economics easy, though economists make it difficult. So we are teaching it to make you interested in the subject. So today we'll do some basic concepts of macroeconomics. Those will be discussed, be used, those terms would be used time and again in other chapters as well. So to start with, there are two things, consumption and investment. So now this is a single lesson, but investment part I'll do in a separate video. Today I'll just do, in first video I'll just be doing with types of goods, consumer goods, producer goods, and then intermediate goods and final goods, because goods these are related to consumption. So this is related to consumption. So this way you will not confuse what we did and why we did, where we did it. Next part would be of investment. And when I am bifurcating this lecture into two videos, it means it would be easier for you to remember these concepts separately from everything, and you will get a break also to understand the first very thing very clearly. Now there are types of goods. What types of goods are perishable or single use goods. एक बार में कंज्यूम किया, finished. Then semi durable, सेमी ड्यूरेबल वो होंगी जो सिंगल यूज़ में नहीं जाती पर वो सालों साल भी नहीं चलेंगी. दे विल कंटिन्यू फॉर सम स्पैन ऑफ टाइम. मे बी these tube lights in your class, it may fuse after 6 months or maybe after 9-10 months. So it won't go for 10 years, 15 years, 20 years, 50 years, but the school building will. So school building is durable. Your furniture is durable unless you break it. It won't just perish on its own just because you are using it. You may use it for 50 years. It won't go anywhere. So it is durable. Furniture is
durable, but these bulbs, tubes, these are semi durable. Curtains in the rooms, tapestry you change, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगी, सेमी ड्यूरेबल में आ जाएंगी। ड्यूरेबल जो सालों साल चलती रहेंगी, जैसे बताया फर्नीचर चले जाएगा, वो ड्यूरेबल है आपका। तो अब है गुड्स आर टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स you can feel these, you can see these, you can touch these. Then these are material things. Material things are tangible. So goods are tangible. Non-material goods which is not material, which you cannot touch, which you cannot see. I am delivering a lecture. Though you are seeing a video, but if I am in a class, what is a lecture? Now it will be a video. Video is still tangible thing, though it's a service. You understand? But unless it is recorded, you cannot. Even now, even if you are watching a video, you cannot touch my voice. You can just hear it. It is not a material thing. You can just listen to it, but you cannot see it. You are seeing just my face, but my voice you cannot see. So it's not a tangible thing. Services are not tangible. Transportation, you can see a bus. You come to school by bus or anything. So bus is a tangible thing, but the service it is providing, carrying you from your stoppage to the stoppage near your school, it drops you there. So it is rendering a service, bringing you to school. This service is not tangible, bus is tangible. When doctor gives you a medicine, you get cured. Doctor as a person you can see, but the services he gives you cannot see. Tablets you can see. Tablets are tangible. Those are, but the service, what to give, how to give, what is the disease, the things that is going on in his mind. He is using his knowledge to diagnose you and to treat you. That is a service. तो अंडरस्टैंड सर्विसेज आर सेवाएं, जो सेवाएं हैं वो हम मटेरियल गुड्स में ऐड नहीं कर सकते, वो अलग होती हैं. दोज आर नॉन मटीरियल. उनको क्योंकि हम कैटेगरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो इनको गुड्स कहेंगे ना अगर, तो इनको कहेंगे नॉन मटीरियल गुड्स. नॉन मटीरियल गुड्स सिंपली मीन सर्विसेज, सेवाएं. तो ये आपकी ये हो गई है, एक ये वाली क्लासिफिकेशन हो गई है. अब है कि intermediate goods and final goods. And final goods. ये है मध्यवर्ती. क्या चीज है? मध्यवर्ती वस्तुएं. ये आ जाएंगी अंतिम वस्तुएं. अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं. तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज आफ्टर स्टेज. द यूनिफॉर्म यू आर वेयरिंग, द ड्रेस आई एम वेयरिंग, फर्स्ट इट वॉज कॉटन ग्रोन बाय द farmer, then it went to factory, then the cotton was turned into, spin into yarn, इसका धागा बना. then again एक सेक्शन में धागा बन गया, then it goes to the other section, then it was woven,
वो हैंडलूम भी हो सकता है, वो पावरलूम भी हो सकता है। पावरलूम इज जो मशीन, जो इलेक्ट्रिसिटी से चली मशीन, उसने इसको बना दिया, कपड़े में बना दिया, या फिर हाथ, जो हाथ करगा होते हैं, हाथ से उसको वीविंग करते हैं, तो वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद ये फैक्ट्री में गया, इसकी टेलरिंग हुई, या आपने लूज़ क्लॉथ ले लिया, टेलरिंग हुई, फिर ये आपने पहना। तो इसका मतलब जो चीज़ आपके फाइनल है, फाइनल गुड इज़ यूज्ड बाय द कंज्यूमर, को जो कंज्यूमर है, हु इज़ द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है। तो जो उपभोक्ता है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक एंटिटी दुनिया में है, वो कौन सी है? कंज्यूमर्स। दुनिया में प्रोड्यूसर्स उतने नहीं हैं जितने कंज्यूमर हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं वो खुद भी कंज्यूमर हैं, वो खुद भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, जितने भी किसी मुल्क में लोग हैं, वो उपभोक्ता हैं। तो अब है जो चीज़, जो वस्तु उपभोक्ता खरीदेगा वो अवश्य ही फाइनल होगी। अगर आप अपना सूट पीस लेते हो जो स्टिच नहीं भी है, कपड़े के रूप में लेते हो, पीस ऑफ क्लॉथ, तो भी वो फाइनल होगा, चाहे आपने स्टिच करवाना है, पर आपने खरीद लिया। जो चीज़ कंज्यूमर खरीदेगा वो फाइनल होगी। ये बात क्लियर हो गई है इतनी। अब इंटरमीडिएट क्या है कि उसने प्रोडक्शन के प्रोसेस में फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर अभी और ट्रेवल करना है, अभी उसके ऊपर और काम होएगा, उसके बाद वो फाइनल कंज्यूमर तक जाने को तैयार होगी। जब तक उसके ऊपर काम चल रहा है या उसने आगे और जाना है फैक्ट्री में, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? मध्यवर्ती। अब आप पूछोगे, पूछा नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप में से कोई पूछे, नहीं पूछा है। तो अगर तो कोई फैक्ट्री जो थानों के थान कोई फैक्ट्री ले जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? क्या चीज़ हो जाएगी? वो हो जाएगा इंटरमीडिएट। वो जो क्लॉथ है क्या चीज़? क्लॉथ, अनस्टिच्ड क्लॉथ, वो फाइनल वो हो जाएगा इंटरमीडिएट। क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। जब उसको कोई फैक्ट्री ले जाएगी, कौन ले जाएगा? फैक्ट्री ले जाएगी उसको आगे रेडीमेड गारमेंट्स बनाने के लिए। अगर वो क्लॉथ शॉप्स पे आ गया और कंज्यूमर वहाँ से अपने लिए शर्ट पीस, सूट पीस उसमें से ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा फाइनल। क्या हो जाएगा? इट मीन्स इसका चीज़ वही है, थिंग इज द सेम, वही है क्लॉथ। तो इसका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एंड यूज़ के अंत में वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अगर वो अभी फैक्ट्री में जा रही है और कुछ बनने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट है, तो वो मध्यवर्ती है। अगर वो कंज्यूमर के पास आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगी? फाइनल। यू गेट दिस पॉइंट क्लियर? In lecture method, we don't discuss things as they are given in book. वहाँ आपके इनका डिफरेंस देखोगे, 5-6 पॉइंट्स बनाए होंगे, लेकिन अगर लेक्चर के बिना वो पॉइंट्स पढ़ोगे तो समझ नहीं आएंगे। लेकिन आफ्टर अटेंडिंग माई लेक्चर, इफ़ यू रीड ऑल दोज पॉइंट्स, थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो वो
पेपर करने का स्टाइल होता है वो है जो हम बताते हैं, वो हम थिंग्स को ईजियर करके बनाते हैं। कॉन्सेप्ट की ऐसी छानबीन की जाती है कि बच्चे को कभी भी उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, उसको पूरी क्लैरिटी हो जाए। बट माइंड इट, सुनने से क्लैरिटी हो जाती है कि समझ आ जाता है, लेकिन आप हमें सिर्फ लेक्चर अटेंड करके ही लिख सको वो नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करने का एक टेक्निकल स्टाइल होता है, उसकी लैंग्वेज को और पॉलिश करना होता है, तो वो आप अपने टेक्स्ट बुक्स में से हेल्प लोगे। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसलिए हूँ कि जब बुक पढ़ो तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। अगर कहीं पे कोई मुश्किल आती है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोज कीजिएगा। मैं कभी भी नेक्स्ट जो लेक्चर के पहले आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करने के बाद अपना नेक्स्ट लेसन करूँगी। कभी भी शर्म महसूस मत करना, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा सही होते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनको आंसर करना मेरी ड्यूटी होगा। ये नहीं है कि अब मैं किसी और टॉपिक पे बोल रही हूँ तो क्वेश्चंस ना लूँ, आपके क्वेश्चन सारे एड्रेस किए जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस मच। आपको ये समझ आ गया कि जो गुड्स हैं हमारी इंटरमीडिएट और फाइनल होंगी, अंतिम या मध्यवर्ती। और अब है जो अंतिम हैं वो ज़रूरी तो नहीं कंज्यूमर्स के पास जाएं, वो जो फैक्ट्रीज़ के पास जा रही हैं तो वो अंतिम तो है ही हैं, लेकिन फैक्ट्रीज़ में तो बहुत कुछ है, उनके पास प्लांट्स हैं, मशीनरी है, तो हम डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ है वो किस चीज़ के लिए कहाँ इस्तेमाल हो रही है। अगर वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है तो उसको हम कैपिटल गुड कहेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड कहेंगे। अब आप जो है जो कैपिटल गुड्स हैं कि कौन सी होंगी? कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। There is some similarity also. There is something common to these two goods. What is that? These are final. Both are final goods. ये दोनों ही अंतिम वस्तुएं हैं, बस स्टिल इसमें फ़र्क है। तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स में भी आएंगी, ड्यूरेबल भी आएंगी, जो है सेमी ड्यूरेबल भी आएंगी। जो कंज्यूमर के पास चला है वो सारा है। जो बल्ब यहाँ पे आ गया है वो कहीं इंस्टीट्यूशन में है, किसी में ट्यूबलाइट है, कुछ है, ये कंजम्पशन के लिए तो कंज्यूमर है, लेकिन ये सेमी ड्यूरेबल है। इसी तरह जो फर्नीचर है वो ड्यूरेबल हो गया। इसी तरह से जो हमारी स्टेशनरी होती है, इट इज़ अ सिंगल यूज़। जो सिंगल यूज़ है उसको हम सिंगल यूज़ कहेंगे, पेरिशेबल कहेंगे। एक बार यूज़ किया और ख़त्म हुआ, फिर वो इट कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड, तो वो सिंगल यूज़ हो जाएंगी। इसी तरह से जो कैपिटल गुड्स हैं वो भी क्या होंगी? सिंगल यूज़ एंड ड्यूरेबल। सिंगल यूज़ एंड ड्यूरेबल। अब जो मशीन है, जो मशीनरी है, जो वो बार बार यूज़ होगी, जो बार बार यूज़ होगी वो दैट इज़ ड्यूरेबल, वो टिकाऊ वस्तु है आपकी। तो जो अगर आपने ड्रेस बनाई, एक बार ड्रेस बनाई तो उस क्लॉथ को दोबारा थोड़ी यूज़ करोगे। उस क्लॉथ की ड्रेस बन गई तो सिंगल यूज़ में वो ख़त्म हो गया है। जो इसीलिए जो कैपिटल गुड्स हैं वो सारी की सारी जो है सिंगल यूज़ जो हैं उनको हम जो है वो नहीं कहेंगे कि वो रुकना पड़ेगा कि नहीं कहेंगे इनको। तो ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही थी। किसके लिए यूज़ हो रही हैं? प्रोडक्शन के लिए। कैपिटल किसके लिए यूज़ होएगी? प्रोडक्शन के लिए। तो ये
जो फाइनल गुड्स हैं ये दोनों ही हैं, कंज्यूमर भी हैं, कैपिटल भी हैं। तो इसमें ये बात तो क्लियर हो गई, अगर हम क्लॉथ की एग्जांपल ले रहे हैं जो सिंगल यूज़ के बाद दोबारा यूज़ नहीं होगा, है तो ये प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर के पास चली गई है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको हम पूंजी में नहीं रखेंगे, ये पूंजीगत नहीं है। पूंजी क्या होती है? जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, जो हमारा जो फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई है, वो सब क्या चीज़ कहलाएंगी? वो कहलाएंगी पूंजीगत वस्तुएं। और वो प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, पर क्लॉथ प्रोड्यूसर गुड तो है, प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, पर ये क्लॉथ कैपिटल गुड नहीं है। तो कंज्यूमर गुड्स के बारे में आपको पता चल गया है। ये कंज्यूमर गुड्स हैं, ये भी जो हैं ये तो फाइनल हैं, उन्होंने यूज़ की, उनके पास चली गई, जो उन्होंने ख़रीद ली, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रॉसरी है, जो कंज्यूमर ने ख़रीद लिया है, दैट इज़ अ फाइनल गुड फॉर दैट इज़ अ फॉर कंजम्पशन पर्पज़। ये प्रोडक्शन, इसका पर्पज़ डिफरेंट है, इसका पर्पज़ कंजम्पशन है और इसका जो पर्पज़ है प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन, ये पर्पज़ दो हो गए हैं। तो अब है कंजम्पशन से हमारा आज कंज्यूमरिज्म चल रहा है, जो ये वेस्टर्न से आई हुई इकोनॉमिक्स है, जो हम पढ़ते हैं, जो कैपिटलिस्ट मुल्कों में जो पढ़ाई जाती है। तो इसमें तो ये कहते हैं जो वेलफेयर है वो किस तरह से देखा जाता है? मोर द कंजम्पशन मोर द वेलफेयर। तो इसमें ये नहीं कहा जाता कि जैसे हम कहते हैं कि प्रूडेंट वे में हम चलें, ये ऐसा करो, हमें चद्दर देख के पैर पसारें, ये हम इकोनॉमिक्स में, इस इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो ज़्यादा वेलफेयर हो रहा है, तो कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। तो ये माइंड इट, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल जो यूनिट्स की स्टडी नहीं है, ये माइक्रो की नहीं है। उसमें पैराडॉक्सेस की जब बात करेंगे तब मैं इस बात को आपके साथ एंड लास्ट में जब करूँगी माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, तो इस कंज्यूमरिज्म के पार्ट को अच्छी तरह से आपके साथ लूँगी। तो इसके साथ है जो कंजम्पशन से हमारा क्या पता चलेगा? वेलफेयर। अगर हमारी जो इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ रही है, तो उसका मतलब कि हमारे जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। हमारा प्रोडक्शन बेस जो है वो बहुत बड़ा होना, वो साउंड होना चाहिए। हमारा प्रोडक्शन बेस कैसे साउंड होगा? अगर हमारी जो कैपिटल गुड्स हैं वो ज़्यादा होंगी। क्या होंगी? कैपिटल गुड्स जो हैं, जो हमारी मशीनरी है, जो हमारे जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये है टेक्नोलॉजी है, ये बढ़ेगी, ये इसके ऊपर ज़्यादा खर्च होगा, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स बेस है वो ज़्यादा साउंड होगा। जैसा कि चाइना का है, जैसे चाइना में प्रोडक्शन बेस बहुत है, वो सब सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीज़ें बना के बेचते हैं। यू वोंट फाइंड एनी कंट्री जहाँ पे आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट ना मिलते हों। तो क्योंकि उनका प्रोडक्शन बेस है तो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारे मुल्कों से ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना। अब इन्वेस्टमेंट का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। इसके साथ आपको इसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि हमने 4 चीज़ें की थी। क्या कौन कौन सी की थी? पहले की थी इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, देन कंज्यूमर गुड्स एंड देन प्रोड्यूसर गुड्स और जो कैपिटल गुड्स। तो इनका डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है
कि ऑल प्रोडक्शन गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये दो हमने सेपरेटली किए हैं, तो 4 टाइप्स की आपने गुड्स कर ली हैं। तो ये हमारा कंजम्पशन के साथ था रिलेटेड, क्योंकि जो फैक्ट्रीज भी हैं तो वो कंज्यूम कर रही हैं ना, वो रॉ मटेरियल के यूज़ में अगर क्लॉथ कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं तो प्रोडक्शन सेक्टर में आ जाएगा, पर उसका पर्पस क्या है कि वो उसका सिंगल यूज़ गुड में आएंगी, तो वो सिंगल यूज़ गुड कैपिटल नहीं होगी पर प्रोडक्शन ज़रूर होगी। समझ आ गया? जो सिंगल यूज़ गुड है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, पर वो कैपिटल नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वन।